حاصل کی ہے، بچپن گزرا ہے، بغل میں ہمارا گاؤں ہے۔ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو نظر یہاں کی اور پڑتی ہے۔ کچھ باتیں بتانا چاہوں گا، اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے گاؤں میں اپنے بچوں کو، خاص کر کے اپنے بچوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ گاؤں کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ جب معاشرہ اچھا نہیں ہوگا، گاؤں کی فکر نہیں ہوگی، تو گھر کے بچے اچھے کیسے ہوں گے؟ تو فکر علاقے کی کرو، گھر میں رحمتیں آ ہی جائیں گی۔ ٹھیک ہے؟ دوسری بات، جموں کشمیر کے اتہاس میں پہلی بار ایک بڑا حادثہ ہوا، جو پچھلے دنوں بارڈر میں ہوا۔ میں بھی وہاں پر گیا۔ انسان کو کوئی پتہ نہیں، دنیا کے اندر آیا ہے، بشیر ہم بھی بیٹھے، کسی کو پتہ نہیں۔ میں بھی جب وہاں پر گیا تو وہاں کچھ لوگوں سے ملا، تو کچھ لوگ ایسے تھے جو وہاں اس دلدل سے بچ کر نکل آئے۔ بادل پھٹا تھا، پھٹنے کے بعد لوگ کچھ بہہ گئے، مکانات بہہ گئے، کچھ لوگ اس ماحول میں بچ کر نکل آئے۔ کچھ لوگوں کے چہروں پہ خوشی تھی اور کچھوں کے سامنے خوف کا منظر تھا کہ ہم بچ گئے۔ پھر مجھ سے کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی تو ہم نے بھی بول ہی دیا، پتہ نہیں کیوں بولا، لیکن بول دیا، وہ آج آپ سب کے سامنے بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی صاحب، اس دنیاوی آفت سے تو بچ گئے، آسمانی آفت سے تو بچ گئے، کھوا آپ اس دلدل میں نہ بہہ گئے، لیکن یقین مانو وقت تمہارا بھی طے ہے، ہمارا بھی طے ہے۔ آج اگر یہاں پر نہیں، کل کسی اور مقام پر ہونا طے ہے۔ سب سے بڑی بات، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، یہ بات الگ ہے، لیکن مانتا کوئی نہیں ہے۔ سفید بھی ہو گئے، عمر دراز بھی ہو گئے، مرنے سے ڈرتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی مرنا ہے۔ اب یہ چیزیں تبھی ممکن ہوں گی جب ایسے اداروں میں ہم لوگ پڑھیں گے، جانیں گے زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میں بھی پڑھا ہوں، اتنا تو نہیں پڑھا ہوں، لیکن جتنا پڑھا ہوں بس خوف کھاتا ہوں۔ آج بھی مجھے کسی نے کہا اعلان کر لے، میں نے کہا میری 1.5 لاکھ سیلری ہے، کسا چلا 1.5 لاکھ۔ میرے یہاں بغل میں بیٹھے پتہ نہیں اسی مدرسے سے نکلے ہوئے نوجوان ہیں جن کی 1.5 لاکھ سیلری ہے، لاکھ بھی ہے، 70,000 بھی ہے۔ میں دپان ژٕ دِ ییٖژاہ لچھ، کۭژاہ ییٖژاہ لچھ، میں سے 1.5 لاکھ، مجھے 1.5 لاکھ عوام، 1 لاکھ عوام ہے جن کی رہبری میں کر رہا ہوں۔ میرا کوئی سائیڈ بزنس نہیں ہے۔ مچھم ارے آپ بھی ہو، آپ کے بھی بچے، مجھ سے 100 ورش ہوئے۔ اگر میں 1.5 لاکھ میں سے غریبوں کو دے رہا ہوں، چاہے جو میرے پاس آتا ہے جس حساب سے آتا ہے دے دیتا ہوں، میری تنخواہ عوام کے لیے ہی ہے۔ دبن سے کیسی زکات میں آلریڈی میں خود زکات میں ہوں، میں خود زکات میں ہوں۔ ارے آپ لوگ بھی ہو، اس مدرسے سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، یہ ہماری روشنی ہے۔ شراب کی بو سے بچانے کا کام تبھی ہوگا جب ہمارا بچہ یہاں نماز پڑھنے آئے گا۔ کہہ طریقے معاشرہ ایسا ہے، جگہ جگہ شراب کی دکانیں کھلی ہیں، ماحول الگ ہے، نشے کی لت لگ گئی ہے۔ معاشرہ تبھی سدھرے گا جب ہم ان اداروں کی حفاظت کریں گے، اور جب گاؤں کے لوگ، علاقے کے لوگ یہاں سے تعلیم حاصل کریں گے تو ہمارے بچوں کو بھی پناہ ملے گی۔ نچے زبان اس وچو پینن شوڑن، آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں اگر آپ کا گاؤں صحیح نہیں ہے، پتہ کر لو۔ اس لیے پورے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ آج اگر میں اس مدرسے سے نکلا ہوا ایک طالب علم تھا، آج میں اس مقام پہ کھڑا ہوں جہاں جموں کشمیر نہیں پورا دیش جانتا ہے، اور اس بات سے کہ ایمانداری کی بو ہمارے یہاں سے آتی ہے، اور یہ وہی مدرسہ ہے جہاں سے ہم نے تعلیم حاصل کی۔ آپ ہی وہ لوگ ہو، واعظ تو روز ہوتی ہے، ہر جمعے کے دن بات ہوتی ہے، چھا گسن آج تو گئے کہتے گئے نا، بڑے بڑے عالم آئے، مفکر آئے، بہت ساری باتیں بتائی، لیکن عملی جامہ پہنانے میں دقت کیوں آ رہی ہے؟ بس دنیا کے اندر انصاف جاری کرنا ہے، دنیا کے اندر ایمانداری سے کام کرنا ہے۔ چوری کی ہوس رکھتے ہیں مگر سور ہرش نہ کر
हिरस इतना रखते हैं, इसने ये इतना बड़ा मकान बना लिया, हम उससे मकान को तोड़ नहीं सकते, ना अपना बना सकते हैं, फिर वैसा हिरस क्यों रखते हो? या तो अगर इतनी ताकत है, आपको लगता है किसी ने 3 छत मंजिल बना ली, या तो उसको तोड़ने की ताकत अगर है तो हिरस रख लो, वरना अगर तोड़ने की ताकत नहीं है तो फिर उससे सलाह कर लो, उससे पूछ लो कि ये मकान तामीर कैसे किया, ताकि तरगीब सिखाएगा। ठीक है ना? हिरस के साथ सुन। और रही बात, आखिरी बार बता के जा रहा हूं, आज हम जिंदा हैं, यहां पर हैं, आज पिछले साल भी बहुत लोग थे। खौफ अल्लाह का हो जाए, इतना यकीन आ जाए कि मरने के बाद खड़ा कर दिया जाएगा, पूछा जाएगा। अगर खुदा की कसम करके कहता हूं, बाज आ जाओ। मैंने अभी एक लड़के से बात की, कहा मैं फलानी जगह से हूं। मैंने कहा वो बदनाम बड़ा था, यहीं बगल में बैठा था। स्वालाकोस बदनाम में अगर वो बदनाम था, वहीं से अब उसको बेहतर करने की शुरुआत करेंगे। हमारा इलाका भी वही है, हम पहाड़ों के आखिरी पहाड़ों के कोने में नहीं हैं, इस जमीन गोल। अगर शुरुआत यहां से बेहतरी की होगी, उम्मीद की किरण जागेगी। यकीन मानो कि अगर इन पहाड़ों से महराज जाता है तो जम्मू कश्मीर मैंने देश के अंदर नाम खड़ा करता है। यकीन मान जाओ, इस्तेहकों के बड़े पैमाने पर एक बड़ा बदलाव लाएंगे, और ऐसे ही हम दिखाएंगे कि हम कौन है। हम चलते हुए हमें नहीं बताने चाहिए कि यम कुमच। और आखिरी बात उलमाए किराम भी है, कातरजम मदारिस में लोग जाना चाहते हैं, लेकिन जाने के बाद हमारे उलमाए किराम, हमारे ये जो लोग हैं, इश्क प्राणन रोजदरी ईद है, मैं चाहता हूं कि ये भी दुनियावी एतबार से उन मामलात में आ जाएं, ये लोग जिम्मेदारी उठाएं, और इनको पता है कि गरीब का हक खाने का गुनाह क्या है। अगर ये लोग जिम्मेदारी का बोझ उठाएंगे, यकीनन मेरे जैसे आदमी का बोझ भी हल्का हो जाएगा, बिदगसा आजाद। और मैं चाहूंगा कि आने वाले कल में मदारिस से निकला हुआ बच्चा दुनिया के हर शोबे के अंदर अपना एक नाम कमाए और दुनिया को बताए कि इस्लाम क्या सिखाता है। इस्लाम ने सिखाया है, बगल में बैठा गैर, इंसानियत से बेहतर दर्स इस्लाम के अलावा कोई नहीं दे सकता है। गैरों के साथ हुस्ने सुलूक बताया है, और अगर ये इस्लाम है तो इसकी दावत देना हमारा फर्ज है। आज हमारी जिम्मेदारी है, हमको निभाना है। तो सोच मिले जुलत करोस, कल किसने देखा, भरोसा नहीं है। जो भी होगा बेहतर होगा। बेखजो दर्ज घास ख्याल 2.5 करोड़ इसका सालाना है, कौन लाएगा, कहां से आएगा? फिर जरा हिम्मत दीजिए, बॉसुस वचन में वैनमा का मुझे देने की गरज नहीं थी, लेकिन मैंने 51,000 खाते में डाल दिया है। 2.5 करोड़ कहां से आएगा? आप इस खर्चे को नहीं उठा पाएंगे तो माशरे की बेहतरी की उम्मीद किससे लगाओगे? ठीक है, बेवाद रोज तो लोग इंशाल्लाह खुद फिर कभी मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुम। लोग लाइव देख रहे हैं। 83 आप हजरत सुबह से यहाँ बैठे हैं, सुबह से आपने उलमा के बयानात सुने, बच्चों का प्रोग्राम सुना। आप जलसा अपने आखिरी मराहिल के अंदर है। अभी बच्चों की दस्तारबंदी होने वाली है। सभी हजरत इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे। इंशाल्लाह 5-10 मिनट के अंदर दुआ भी हो जाएगी। दुआ के बाद अपने घरों को जा सकते हैं। इस वक्त आपने सुना कि मदरसे का सालाना खर्चा तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया है, और ये पैसा इलाके से आता है, इलाके से बाहर से आता है, और इलाके के लोगों ने हमेशा इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। 2019 के अंदर जब लॉकडाउन हुआ, पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल थी, लेकिन उस वक्त भी यहाँ की आवाम ने, यहाँ के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और जिस इलाके से मदरसे के लिए साल के लिए 5 या 7 लाख रुपया आता था, उसी इलाके से लॉकडाउन के अंदर मदरसे के लिए 96 लाख रुपया जमा हुआ था। ये इलाके के लोगों की कुर्बानियाँ हैं, मेहनतें हैं। सभी हजरात कुर्बानियाँ देते हैं, मदरसे का साथ देते हैं, ताउन करते हैं।
हर तरीके से हर एतबार से मदरसे का साथ देते आए हैं। तो बहरहाल हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक के देने को कबूल फरमाए। हमारे इलाके के अंदर कुछ ऐसे मुआविनीन हैं, कुछ ऐसे मुहिब्बीन हैं जो हमें साल के अंदर तकरीबन 6-7 लाख रुपया देते हैं। अभी जलसा हमारा है पिछले जुमा को, उससे पहले जुमा को, जुमा पर भी ऐलान हुआ था, मदरसे के जलसे के लिए चंदा हुआ था। तो तकरीबन जो चंदा जलसे के लिए हुआ 7 लाख रुपया हुआ, और 7 लाख रुपया में से तकरीबन 4 लाख रुपया हमारे इलाके के 3 साथियों ने दिया। और इसके अलावा रमज़ान के अंदर उनका हमारा चंदा 3 लाख 4 लाख रुपए एक बंदे के आता है। तो उनके बारे में यहाँ मशवरा हुआ है, कमेटी में मशवरा हुआ है, तो उनकी हौसला अफजाई की जाएगी और उनकी दस्तारबंदी की जाएगी। तो उसके अलावा जो बच्चे हैं उनकी दस्तारबंदी होगी। जो आलिम यहाँ से फारिग हुए, जो हुफ़ाज़ यहाँ से फारिग हुए, बन्नात से जो बच्चियाँ आलिमा कोर्स करके फारिग हुई हैं, उनके वालिदैन की दस्तारबंदी होगी। तो इस साथ साथ तमाम बच्चों के नाम पढ़ेंगे और यहाँ पर उनकी दस्तारबंदी होगी। इलाके के जो 3 मावनीन हैं उनमें मोहतरम माजिद साहब कपहाड़ी से, मोहतरम इमदाद साहब फराश और अमजद अहमद टाक, ये 3 साथी हैं। ये तीनों यहाँ तशरीफ लाएंगे, इनकी भी दस्तारबंदी होगी। जिन खुशनसीबों ने इस साल कुरान पाक मुकम्मल किया है उनमें अजहर अली वल्दे आशिक हुसैन मालिक साकना चालक, मुताहिर हुसैन वल्दे इरशाद अहमद पड़े साकना भटोगड़ा शामिल हैं। तालबात में से किरात में मोहम्मद तलहा इब्न अब्दुल मजीद वानी, इन्होंने शोबाई किरात से फरागत हासिल की है। दौरा हदीस से फारिग होने वाले खुशनसीबी में तहजीब अहमद वल्दे अब्दुल लतीफ शेख, मोहम्मद तस्लीम वल्दे गुलाम कादिर बाग, बिलाल अहमद वल्दे मोहम्मद हनीफ मालिक, अबरार अहमद वल्दे मुनीर अहमद मीर शामिल हैं। इसके अलावा तालिबात में से हिफज मुकम्मल किया है साइमा बानू बिनते जमालुद्दीन टाटा, और आलिमियत जिन्होंने मुकम्मल की है उनमें है रुकया बानू बिनते शहजाद अहमद मीर राजपुरा, अफशाना बानू बिनते हक नवाज भट्ट बाथरी, अक्सा रमीज बिनते रमीज राजा शेख गुंडो, सुमैया बानू बिनते गुलाम नबी भट्ट बाथरी, राफिया बानू बिनते अब्दुल रशीद हरगा चालर, आलिया बानू बिनते शौकत अली शेख गुंडो, तहसीना कौसर बिनते लियाकत अली तवाई चंगा, मेमूना अब्बास बिनते मोहम्मद अब्बास शेख गुंडो, इमरोजा बानू बिनते मोहम्मद आरिफ खान जी शलाला, इफरा बानू बिनते महनाज हुसैन राजपुरा, नादा कबीर बिनते कबीर अहमद कीन गुंडो, अकलीमा बानू बिनते जावेद इकबाल वानी बेली, सुमैया बानू बिनते मोहम्मद हनीफ चालक, मेमूना बानू बिनते मोहम्मद शफी शेख गुंडो, साजा बानू बिनते जहीर अब्बास का चिली वाला, और सुमैया इकबाल बिनते मोहम्मद इकबाल मीर काको भट्टी शामिल है, जिनके वारसीन वारसीन की यहाँ दस्तारबंदी की जाएगी। मुबारक
दस्तारबंदी एट जामिया गनियतुल उलूम अख्तियारपुर हलेसा सदारत जलसा हजरत मुफ्ती शामाइल अब्दुल्ला नदवी। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।